sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are totally audible. Okay. Okay. So, student, today we'll start the fast experiment. I will tell you some introduction regarding simulation. Fast. This experiment previous semester we have done in MATLAB, but this semester we want to use to simulate this experiment using two softwares, that is MATLAB and Multisim. So first two experiments will be simulated through Multisim, so that you'll get knowledge some means about the Multisim software. It is also very important for circuit simulation, and the rest of the experiments will simulate using MATLAB. Okay. So, fast experiment, as I have told you last class, sir already explained everything. So we all are ready to help you in all respect. One thing you remember, you please don't copy from others. You do yourself. Whatever put your idea, give your effort, and prepare the records as per your ability. Okay, that is our motto. Okay, so whatever I am explaining today is not mandatory that you have to copy those things and write the manuals. Not like means write your record. Not like that. You have to analyze yourself. You can modify. You can write better than me. So your if your record is if you we will see that means whatever you have done in your record, it's above than us, then definitely your evaluation will be more. So any kind of help you need from me or from sir, we are always ready to help you, so don't be worried about that. And it's not mandatory that today you have to submit the record. You are having as you have told, as some student he or she told that 7 days, if you want to simulate, we are also sir, yes or no, you please give your response. 7 days we are also agree to give time to the students to submit the record, no problem, but you do yourself. Am I correct, sir? Am I audible to all? Yes, Hello. sir. Yes, sir, you're ah, audible. so time period, 1 week time period will be given to you. No, don't worry about that. So fast experiment, analysis of single phase half wave diode rectifier and thyristor rectifier using different loads. First we have to simulate the circuits using R load, RL load with a single diode. Then we have to simulate same circuit with or by using a thyristor. Okay, by using diode, you have to find out the input voltage, then output voltage, output current. Similarly, using freewheeling diode, using without freewheeling diode, using load, RL load, and RLE load. So several circuits will be there. Simple circuit will be using R load. Then you have to simulate the same circuit using RL load. Then RL load, use a freewheeling diode in reverse bias mode. Then you use RLE load and show the output waveforms, output voltage, output current, like that. Then analyze yourself. So first you have to simulate these things using only diode, single diode. Then you have to use a thyristor, and same loads will be simulated using freewheeling diode as well as without freewheeling diode. Okay, so this is your experiment number 1. So screen share. Sir, I am not able to share the screen. Hello, sir. Hello. Sir, please, Hello. sir, please allow me to I'm share telling the screen. you. It was. I'm telling you. Please open the share chat. Okay. So is it visible from your side? Means first video button, then microphone. Okay. Then open the share chat. Please click here. Uh, where I don't get. Again, sir, tell. First time is showing, na? Then
uh, current camera. Okay, camera is there. Then microphone. Then open share tray. Is it? It is disable now. It is disable. Ramaprasad da? Video is of video icon is there. Audio icon Visible. is there. Hello. Is it visible? It is disabled. Oh, open share tray. Is it visible? Written here only meeting organizers and presenters can share. Okay. Okay. I think you are also organizer. Okay, I'm just leaving the meeting and you just check. No, no. I'm just leaving. Okay, sir. You I'm just leave leaving then and join. again I'll join. Yes, yes, Again yes. I'll join. Okay. Again I'll join. You please check it. Okay, sir. Mm, why it is disabled? Sir. Okay, students. Is it visible to all? Yes, is it Yes, sir. visible? It is Okay. visible. So this is your multisim software, and first you have to use diode. Now you need a supply source from power source, AC power. Then from here you will get diode from basic. From basic your library you will get diode.
Diode you can take 1N500, Hmm. 4007 ले सकते हो सर। सो यहाँ पे ये ले जाएंगे, ये पावर डायोड MUR460। ओके, देन कनेक्ट रजिस्टर। कुछ भी वैल्यू एक ले सकते हो, बाद में एडिट कर सकते हो। So voltage values, whatever, suppose I have taken here 120 volts 50 hertz, और 230 वोल्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले में ऑन करोगे तो कितना वोल्ट लिए ये शो करेगा। दिस इज डायोड। यहाँ पे सपोज 500 ओम्स का मैं वोल्ट एक रेजिस्टेंस लिया, कम ले जाते हैं 200 ओम का लो सकते हो। ओके, विजिबल, सबको विजिबल हो रहा है तो हेलो। यस सर। हाँ, यस तो सर। यहाँ पे आर लोड में मैं कनेक्ट किया और यहाँ पे ग्राउंड दोगे। सिमुलेशन से पहले ग्राउंड देना मैंडेटरी है। सो अभी इसका क्या देखेंगे, वोल्टेज एंड करंट, इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, आउटपुट करंट वेवफॉर्म। ठीक है, ओके। सो ऑप्शंस यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑसिलोस्कोप है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑसिलोस्कोप्स आर देयर। शो नहीं करता है, ठीक। यहाँ पे 4 चैनल ऑसिलोस्कोप है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या फीचर्स है, एक दो समझ में आ जाएगा। सो ये 4 चैनल्स ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो इसका चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी, देन ग्राउंड, ट्रिगरिंग होगा तो भी दे सकते हो, और जो ट्रिगर के लिए। सो देखो, वोल्टेज वेवफॉर्म डायरेक्टली तुम यहाँ पे अगर पुट, ये अगर तुम ये वायर में अगर पुट करोगे चैनल ए, तो तुम डायरेक्टली वोल्टेज वेवफॉर्म देख सकते हो। जो भी वेवफॉर्म आएगा वो वोल्टेज का ही होगा। अगर तुम करंट वेवफॉर्म देखोगे
उसके लिए तुमको एक प्रोब डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा कंफर्मेशन के लिए इसी वायर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को जाना है। प्रॉपर्टीज में लिखा है नेट नेम 2। नेट नेम 2 मीन्स ये शो करेगा V2। V2 का मतलब आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे नेट नेम सपोज 1 है, उसका मतलब V1 मीन्स इनपुट वोल्टेज, V2 मीन्स आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली ये तो तुम्हारा वोल्टेज शो कर देगा। दूसरा, ये जो चैनल बी, एक काम करता हूं, इसको चैनल बी को लगा देता हूं आउटपुट वोल्टेज। चैनल ए को मैं लगा दिया इनपुट वोल्टेज। चैनल ए शो करेगा इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म, चैनल बी शो करेगा आउटपुट वोल्टेज मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द आर लोड, एंड चैनल सी में मैं करंट का वेव फॉर्म मेजर करना चाहता हूं, उसका वेव फॉर्म शो करना चाहता हूं। तो करंट का वेव फॉर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक अलग है मल्टीसिम में। जैसे एक प्रोब तुम देखोगे, राइट साइड जो बॉटम कॉर्नर है वहां पे एक प्रोब लिखा है, करंट प्रोब, दिस वन। ये राइट साइड बॉटम कॉर्नर में मिलेगा। तो वो करंट प्रोब को इसी पाथ में लगा दो, तो यहाँ पे लिखेगा ये है करंट प्रोब। प्रॉपरली अगर ये कनेक्ट होगा तो ग्रीन सिग्नल यहाँ पे शो करेगा, ग्रीन ग्रीन का जो सिंबल। तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड हो गया। अभी इसका, अभी ये जो आउटपुट दिखा ये करंट का, लेकिन वोल्टेज का वेवफॉर्म लिखेगा, बट दैट इज नॉट वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज। ये प्रोब कन्वर्ट करता है वोल्टेज को करंट में, इसीलिए इसका जो कन्वर्सन रेशियो तुम्हारा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ये वोल्ट पर मिली एम्पियर दिया है, तुम एक काम करोगे यहाँ पे मिली वोल्ट पर मिली एम्पियर। उसका मतलब यहाँ पे जो कन्वर्शन होता है ये सेंसर में, सो ये मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट का वेव फॉर्म को ये मिली एम्पियर में दिखा रहा है। उसका मतलब मिली एम्पियर इज द करेंट, मिली वोल्ट इज द करेंट, millivolt is the current, but it is converted the voltage into current in equal ratio. So यहाँ पे ये क्या किया, मैं थर्ड जो चैनल है उसमें मैं लगा दिया एक करंट का वेव जो प्रोब। अब सिमुलेट करोगे तो शो करेगा कितना वोल्टेज, कितना करंट, कितना इनपुट आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है चैनल ए, यहाँ पे जो आइकन है यहाँ पे चैनल ए लिखा है। चैनल ए में यहाँ पे 230 वोल्ट दिए हैं, इसीलिए ये फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, तो इसका टाइम स्केल को थोड़ा कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और पहले ये ओके ओके, देन ये वोल्टेज को बढ़ाने से उसका वेव फॉर्म अच्छा से दिखाई देगा। Wait, I'm showing all the things one by one. Then चैनल बी, चैनल बी में सॉरी चैनल ए जो है एसी का हो गया, ठीक है। चैनल बी उसका भी स्केल कम कर देते हैं, और चैनल सी उसका भी स्केल कम कर देते हैं। उनका पोजीशंस अगर अलग अलग करेंगे चैनल ए का पोजीशन में नीचे रखा चैनल ए का पोजीशन, चैनल बी का पोजीशन, दिस इज चैनल बी, और चैनल सी का
तुम अगर प्रैक्टिकल में करोगे लेबोरेटरी में तो तुमको ऐसे वेवफॉर्म दिखाई देगा। जो प्रैक्टिकल ऑसिलोस्कोप लेके करोगे ऐसे कंटिन्यूअसली वो रन करेगा और ऐसे वो शो करेगा। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? यहाँ पे चैनल ए, ये हो गया तुम्हारा चैनल ए का वेवफॉर्म नीचे दिया। चैनल बी का वेवफॉर्म जो वैरी होता है ये हो गया चैनल बी का वेवफॉर्म, दिस वन। एंड चैनल सी का वेवफॉर्म हो गया ये इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट करंट। ठीक है, तो आउटपुट इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, उसको तुम कैसे दिखोगे? उसके लिए ऑप्शन से ग्राफर ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में एक है ग्राफर। नाउ दिस वन इज योर ग्राफर। सिमुलेशन को स्टॉप करके फिर रन करोगे तो शो करेगा। तो यहाँ पे ये ग्राफर में तुम इसको मैक्सिमाइज करके, एक मिनट, हाँ इसको मैक्सिमाइज करोगे। ये है पोजीशन, इसका वर्टिकल पोजीशन, एक मिनट, इसका पोजीशन देखते हैं। दिस वन विजिबल, इज इट विजिबल टू ऑल? हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, it is visible. Students, ये, please respond him. हाँ सो ये है तुम्हारा देखो ये चैनल सी मींस दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ करंट फ्रॉम, ये देखो कितना टाइम से कितना टाइम, करंट का वैल्यू क्या है। यहाँ पे कर्सर है, कर्सर से तुम इसको ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तुम बोलोगे सर ये एक ही क्या प्रोसेस है जिसके लिए ऐसे हमको करना पड़ेगा? नहीं, इसका भी दूसरा प्रोसेस भी है। ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। तुम डायरेक्ट सीआरओ देके सीआरओ में सिमुलेशन करोगे। मैं देखो यहाँ पे सिमुलेशन का डिफरेंट टाइप्स बोल रहा हूँ, तुम इसमें तुम्हारा फंडामेंटल भी डेवलप होगा और तुम वेराइटीज ऑफ प्रोसेस भी तुमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ पे तुम और एक काम भी कर सकते हो। इधर तुम यहाँ पे एक इंडिकेटर ऑप्शन है, इंडिकेटर ऑप्शन में तुम जाके वोल्टेज को पहले मेजर करो कितना वोल्टेज आ रहा है। सो वोल्ट मीटर और ले जो यहाँ पे वोल्ट मीटर वर्टिकल, ये वोल्ट मीटर ठीक रहेगा। तो यहाँ पे दे दिया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को तुम कनेक्ट किया पैरेलल में अक्रॉस द लोड, ये शो करेगा वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये वेवफॉर्म नहीं शो करेगा, ये मैग्नीट्यूड शो करेगा। ठीक है, और एक अगर तुम चाहोगे एक एमीटर के लिए, एमीटर एक ले जाओ इंडिकेटर से, एमीटर, एमीटर का हॉरिजॉन्टल लेने से अच्छा रहेगा, हॉरिजॉन्टल फास्ट वाला पॉजिटिव होना चाहिए लेफ्ट साइड। तो दिस वन इज अप्रोप्रिएट एमीटर फॉर दिस सर्किट। तो यहाँ पे एमीटर को तुम क्या करना पड़ेगा, तुमको सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सर्किट है एमीटर यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे एमीटर सीरीज करके लोड में लगा दिया और वही करंट प्रूफ भी वहां पे डाल दिए। ठीक है, तो ये करंट शो करेगा, करंट का वैल्यू शो करेगा, ये वोल्टेज का वैल्यू शो करेगा, ये करंट का वेवफॉर्म मेजर करेगा, ये तुम्हारा वोल्टेज का वेवफॉर्म मेजर करेगा। यहाँ पे चैनल ए कनेक्टेड टू इनपुट वेवफॉर्म, चैनल बी इनपुट वोल्टेज, चैनल बी कनेक्टेड टू आउटपुट वोल्टेज, चैनल सी कनेक्टेड टू आउटपुट करंट। ठीक है, तो मैनुअली जैसे तुम करते हो, सप्लाई सोर्स में एक वोल्टमीटर देते हो, एमीटर देते हो और उसको में सीआरओ देते हो। सीआरओ मींस ये कन्वर्टर है, इसमें उसके अंदर सेंसर से और तुम ऐसे सिमुलेट कर सकते हो।
तो उसी सिमुलेशन भी यहाँ पे करके तुम ये वेव फॉर्म भी ऐसे निकाल सकते हो यूजिंग ए ग्राफर। ग्राफर देके ग्राफर से भी तुम उसका व्यू मैन्युअली निकाल सकते हो। कितना टच है कितना नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए तो सर बोले कि जो जितना मॉडिफिकेशन करेगा मॉडिफिकेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो दिखा रहा है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखा रहा है, मिली में दिखा रहा है, मिली मीन्स ये करंट का, और ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज और ये इनपुट वोल्टेज, ठीक है, चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस, इसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का वेवफॉर्म तुम ये कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन होता है, हाँ ये थोड़ा गलत दिखा रहा है, तुम बोलोगे सर हम तो 230 वोल्ट दिए हैं और ये तो 87 दिखा रहा है। अरे देखो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ना ये डीसी में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी में, अभी शो करेगा। हाँ सिमुलेशन रन करने के टाइम नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा वोल्ट मीटर जो है ये इसको एसी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसी कर देने से देखो ये शो करेगा तुम्हारा एग्जैक्ट, देखो 230 वोल्ट शो कर रहा है, हाँ एसी वोल्टेज। तो यहाँ पे जो करंट होता है तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस हो गया इतना और वोल्टेज इतना, तो करंट कितना जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट ये करंट दिखा रहा है और ये करंट का वेवफॉर्म भी उतना आएगा। ये एक प्रोसेस है। ये तुम्हारा फास्ट मेथड में वोल्ट मीटर एमीटर देके तुम वोल्टेज किया, मेजर किया, करंट मेजर किया, उसका वेवफॉर्म भी ट्रेस किया, इनपुट का आउटपुट का, यूजिंग दिस सीआरओ। और दूसरा मेथड में बता रहा हूं, दूसरा मेथड में तुम डायरेक्ट वेवफॉर्म पाओगे, वो एक आसान मेथड है जैसे हम मैटलब में करते हैं। मैटलब में जैसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं तो इनपुट वैल्यूज आउटपुट का वेवफॉर्म शो कर रहा है। मल्टीसिम उससे बहुत, मैंने मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल पर्सन के लिए मल्टीसिम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मल्टीसिम जैसे हम करते हैं प्रैक्टिकल ऐसे ही करते हैं। प्रैक्टिकली हम वैसे जैसे सीआरओ का तुम देखते हो, प्रैक्टिकली मल्टीसिम में ऐसे ही होता है पूरा। मतलब में तो तुम एक ही डायोड शो करेगा उसमें और ऑप्शंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डायोड्स है। हाँ सो तो देखो इसको दूसरा मेथड में कैसे करेंगे। दूसरा मेथड में तुम्हारा देखो दूसरा मेथड में ये सीआरओ का जरूरत नहीं, आमीटर का जरूरत नहीं, तुम एक वोल्ट मीटर दे दो इनपुट में, वोल्ट मीटर दे दो आउटपुट में, एक करंट दे दो, एमीटर दे दो और एक वोल्ट मीटर इधर इधर कनेक्ट कर दो, ठीक है। दूसरा मेथड में सेम वेवफॉर्म विल गेट बट अनदर मेथड यूजिंग सेकंड मेथड। सो इसको तुम अगर सिमुलेट करोगे तो ये तुम्हारा वोल्टेज शो किया, ठीक है, वोल्टेज V1 वैल्यू, V2 वैल्यू एंड करंट वैल्यू, ठीक है। अब इसका वेवफॉर्म जानना चाहते हैं, जैसे हम पहले से किए थे सीआरओ देके उस तरह वेवफॉर्म उसका ट्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे उसका वेवफॉर्म, तो इसको यहाँ पे जाना है सिमुलेट। सिमुलेट ये एक अच्छा मेथड है, सिमुलेट एनालिसिस, उसके बाद जाओगे ट्रांसिएंट एनालिसिस। ट्रांसिएंट एनालिसिस में जाके क्या करना है कि सपोज थोड़ा टाइम मुझे 0.01 सेकेंड में सब दिखना है। क्या दिखना है मुझे, मुझे पता है 1 का मतलब V1, 2 का मतलब तुम्हारा 2 का मतलब दिस वायर इज लाइन 2, हाँ V2 एंड I2 का मतलब दैट इज करंट ऑफ RL, करंट थ्रू R लोड। सो 0.1 सेकेंड टाइम लिया और आउटपुट में शो किया, मुझे चाहिए V1 चाहिए इनपुट वोल्टेज, V2 भी चाहिए और करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R1 चाहिए, ठीक है। तो करके मैं सिमुलेट किया, तो ये टाइम कम है इसीलिए ज्यादा वोल्टेज दिए, इसीलिए टाइम हम थोड़ा टाइम को बढ़ा देते हैं तो वो शो करेगा। एक मिनट, एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस, टाइम 3 सेकेंड्स के लिए करते हैं। वन सेकेंड ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा कम हो गया था। देखो दिस आई एम ऑल्सो, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे चेक किया 2-3 बार, नहीं किस में आ रहा है, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे जो यहाँ पे एक एक वेवफॉर्म को तुम
सेग्रीगेट कर सकते हो दिस वेव फॉर्म। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 250 मिली सेकेंड में ठीक आएगा या 500 0.25 सेकेंड में भी अच्छा आएगा। 3-4 वेव फॉर्म तुम निकाल सकते हो, ज्यादा वेव फॉर्म देने से क्लमजी होता है। तो सिमुलेट एनालिसिस ट्रांजिएंट एनालिसिस में टाइम दे दो 0.25 सेकेंड्स दे दो, सिमुलेट कर दो, ठीक है ये वेव फॉर्म ठीक है। अब देखो तुम्हारा V1, दिस इज योर V1। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज करने से व्हाइट आ जाएगा। ये तुम्हारा ग्राफर व्यू है और ये है इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कितना, तुम कर्सर से जाके यहाँ पे सिलेक्ट शो कर्सर करोगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा लाइब्रेरी बॉक्स आ जाएगा। एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे तुम इसको ड्रैग करोगे तो वोल्टेज यहाँ पे शो करता है, कितना इंस्टेंटेनियस वोल्टेज शो करता है, आरएमएस वैल्यू शो करता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये तुम्हारा वोल्टेज वेवफॉर्म आ गया। सिमिलरली करंट वेवफॉर्म देखोगे, सिलेक्ट करोगे दिस वन V2। V2 इज व्हाट, आउटपुट वोल्टेज। V1 को छोड़ दो, अभी ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है। और यहाँ पे जो R दिखा रहा है ये तो बहुत कम है ना मिली में, तो इसको तुम मैग्नीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे R को तुम क्या जो I है, नॉट R, I करंट मिली एम्पियर में है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन जैसे दिखा रहा है। इसको देखो ये हॉरिजेंटल जूम, ये वर्टिकल जूम, वर्टिकल जूम दोगे तो इसका वेवफॉर्म ऐसे आ गया, ठीक। तो ये कौन सा वेवफॉर्म है, करंट का। तो उसको भी कर्सर लेके तुम शो कर्सर में इसका वैल्यू कर सकते हो कितना है। तो 2 मिली एम्पियर से कम आ रहा है, डेफिनेटली हमारा जो सर्किट में 1 पॉइंट कितना आ रहा था यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग। सो दैट मिली एम्पियर इन फॉर्म ऑफ मिली एम्पियर इट इज शोइंग वट एवर द वैल्यू 1.59, यहाँ पे 1.59 मिली एम्पियर आ रहा है दिस वन। सो यहाँ पे सर्किट में देखो, सॉरी, हाँ यहाँ पे सर्किट में देखो वही सिमुलेट करने से देखो कितना आ रहा है, सॉरी वहां पे 0.51 आ रहा है। अच्छा 0.51 ये में उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहा था इसलिए वो कम आ रहा था। यहाँ पे देखो और एक बार करता हूँ, ये 0.1 एम्पियर आ रहा है, इसका एवरेज वैल्यू है, ये मैंने आरएमएस वैल्यू है। वहां पे तुम उसका वेरिएशन देख सकते हो कितना से कितना वैरी होता है। सो एनालिसिस अगेन, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया सिमुलेट करने से तुम्हारा एट ए टाइम सब वैल्यू आ रहा है V1 V2 I, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ठीक है। तो ये एक ही ग्राफ में आएगा, एक ही ग्राफ में आएगा। तुम इसको सिलेक्ट करके क्या करना है, कौन सा वेवफॉर्म लेना है वो देखो। ये इसको थोड़ा जूम करोगे, हाँ जूम करने से इसका वैल्यू आ जाएगा। और वो कर्सर में जाके थोड़ा इसका हॉरिजेंटल जूम भी कर दो, 2-3 वेवफॉर्म ऐसे ले सकते हो, कर्सर में जाके इसका वेवफॉर्म ट्रेस करोगे। तो इन दिस वे यू हैव टू सो ये वेरी होगा डेफिनेटली, ओके। सो ये सब थिंग, ये जो चीज है ये तुमको करना पड़ेगा। यहाँ पे दो चीज है यहाँ पे एक तो तुम डायरेक्ट सीआरओ देके कर सकते हो, यूजिंग सीआरओ देके तुम करंट का जो करंट को चेंज करने के लिए करंट सेंसर देके और सीआरओ देके कर सकते हो। अदरवाइज थ्रू एनालिसिस यू कैन ऑल्सो गेट द वेवफॉर्म्स। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? Yes, हेलो? तो Yes. और भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, प्रोब दे के भी तुम यहाँ पे एक प्रोब है, मेजरमेंट प्रोब देने से वो क्या करेगा, ये सब शो करेगा, ये लाइन में कितना कितना करंट है, देखो आरएमएस वोल्टेज कितना आ रहा है। इसमें तुम एक काम करोगे, इसको ये वोल्टमीटर और दोनों प्रोब एट ए टाइम नहीं लगाओगे, इसको हटा दोगे। तो इनपुट में एक प्रोब लगा दो, आउटपुट में एक प्रोब लगा दो, तो और वोल्ट मीटर का भी जरूरत नहीं, ये शो करेगा सब रेडी। तो यहाँ पे देखो आरएमएस वोल्टेज आ गया, ये आरएमएस तुम्हारा जो
और यहाँ पे भी एमीटर का जरूरत नहीं है। प्रोब देने से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हटा दोगे। एक मिनट, यस, हाँ, ओके। सो आरएमएस वोल्टेज, दिस इज इनपुट वोल्टेज 230 volts, output voltage 162 volts, peak to peak this one, then current RMS current milliampere 810 milliampere and RMS current भी constant। सो ये तुम्हारा वैल्यू शो करेगा। वोल्ट मीटर में वो वैल्यू दिखाई देगा, करेंट एमीटर में वो वैल्यू दिखाई देगा, सीआरओ दोगे तो वेवफॉर्म दिखाई देगा। सीआरओ में तुम किसी भी टाइम को लेके भी कर सकते हो। एनालिसिस में जाके ट्रांजिएंट एनालिसिस में उसका वेवफॉर्म्स वगैरह सब चेंज कर सकते हो। जो भी चाहोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वेवफॉर्म को तुम कितना टाइम सिमुलेट करना चाहते हो। दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू, दैट शुड बी वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। वो सेम नहीं रहेगा, हाँ, सबका मैनुअल में रिकॉर्ड में अलग अलग रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स, ये सब तुमको करना पड़ेगा। यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो ऐसे नहीं सर मैं 2 एम्प सर मैं यहाँ पे 300 ओम लूंगा, मैं सर 2.2 ओम्स लूंगा, ऐसे नहीं बोलोगे। तुमको कन्वीनियंट जो लगता है सर्किट के, हमारा क्या चाहिए, हमारा एक्सपेरिमेंट चाहिए। डायोड का अगर सिंगल डायोड लगाओगे आर आर लोड में तो उसका वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे होगा, आउटपुट वोल्टेज का और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसे होगा, और इनपुट वोल्टेज का कैसे होगा। तुम क्या क्या लिए हो उसका सब स्क्रीनशॉट वगैरह वही डालोगे, किसमें, जो रिकॉर्ड में डालोगे। अगर एनालिसिस में किए हो तो उसका इसका स्क्रीनशॉट डालोगे। एसी एनालिसिस, एसी सॉरी नॉट एसी एनालिसिस, एनालिसिस में ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये वाला स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, ये वाला स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। देन आउटपुट वेवफॉर्म्स, ये स्क्रीनशॉट भी तुमको डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो एक एक करके, इसका एक, इसका एक, इसका एक, 3 ठो छोटा करके स्क्रीनशॉट डालो, ज्यादा स्पेस लेना नहीं चाहिए। सर्किट का डालना पड़ेगा, और यहाँ पे सोर्स में भी क्या किए हो ये वाला स्क्रीनशॉट भी डालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या चेंज किए हो रेजिस्टेंस में, ये जरूरत नहीं, यहाँ पे शो करता है डायरेक्टली। हाँ, डायोड में अगर कुछ चेंजेस है वैल्यू में, इसमें जरूरत नहीं। जिसमें ऑप्शंस आता है, मोर देन वन ऑप्शन आता है, सपोज डायोड में सिर्फ ये नंबर दिखा रहा है, इसका और स्क्रीनशॉट डालना नहीं चाहिए। लेकिन सोर्स में तो बहुत सारे चीज है, तो तुम क्या डालो ये स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। सिमिलरली एनालिसिस का भी देना पड़ेगा। तो जिसमें स्क्रीन मोर देन वन ऑप्शन आता है उसका स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, और तुम जो टाइम दिए हो उसके हिसाब से तुम्हारा वेव फॉर्म आना चाहिए, और जो वैल्यू जो कंपोनेंट दिए हो और जो इनपुट वोल्टेज दिए उसके हिसाब से उसका वोल्टेज रेशियो भी, रेजिस्टेंस जो दिए हो उसके हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप हो कितना आना चाहिए वो भी सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं तुम यहाँ पे 230 वोल्ट दे रहे हो और आउटपुट में दिखा रहा है 5 वोल्ट, वो उसका मतलब तुम कहाँ पे कॉपी कर रहे हो। जो वेव फॉर्म में दिखा रहा है ये 230 वोल्ट सर्किट में दिए हो, वेव फॉर्म में दिखा रहा है 130 वोल्ट, तो वो गलत होगा। तो वो सबको हम चेक करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो सेम एक्सपेरिमेंट, अच्छा अभी सबको पता चल गया जो प्रोसेस में बोला? यस सर। अरे सब सुन रहे हो कि नहीं? हेलो Sir, Yes, sir. Yes, sir. The analysis part again, like the parameters is selected. सी, जब एनालिसिस करोगे तब तुमको इतना मालूम होना चाहिए, ये जो नेट नेम का मतलब ये वायर का नंबर क्या है। प्रॉपर्टीज में मैं बोला वायर में तुम पहले सिलेक्ट करोगे, वायर में सिलेक्ट करोगे और ये राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिखा है नेट नेम 2, और उसका मतलब ये यहाँ पे अगर 2 का मतलब V2 शो करेगा तो दैट इज आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पे राइट क्लिक करके देखोगे प्रॉपर्टीज में नेट नेम क्या है, सपोज 1 करता है तो ये हो गया तुम्हारा इनपुट वोल्टेज, ठीक है? तो ये तुमको पता चल गया नेट नेम से। अभी सिमुलेट जाओगे, सिमुलेट, देन एनालिसिस, देन ट्रांसिएंट एनालिसिस। ट्रांसिएंट एनालिसिस में मैं यहाँ पे टाइम, मुझे ये टाइम कंफर्टेबल लगा मेरे हिसाब से। तुमको जो टाइम कंफर्टेबल लग रहा है वो टाइम वहां पे एडिट करो, उसका स्क्रीनशॉट भी वहां पे पेस्ट करो रिकॉर्ड में कितना टाइम दिया, ठीक है? मुझे लगा इतना टाइम में मेरा वेवफॉर्म ठीक आ रहा है, मैं जितना वेवफॉर्म चाहता हूँ। अगर 0.2 दूंगा तो ठीक है, मुझे भी और अच्छा लगे, मीन्स और अच्छा रिजोल्यूशन मुझे मिलेगा।
तो आउटपुट वेवफॉर्म दे दिया। आउटपुट में क्या क्या ऑप्शन आएगा, ऐसे तुम्हारा आउटपुट में बहुत सारे ऑप्शंस आएगा। ये ऑप्शन से तुमको क्या चाहिए, डायोड करंट चाहिए क्या, डायोड करंट का वेवफॉर्म चाहते हो तो वहां पे दे दो, डायोड करंट शो करेगा। अगर तुम चाहते हो सोर्स करंट का जरूरत नहीं है, सोर्स का इनपुट सोर्स का वोल्टेज मींस जो इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म चाहिए, देन वोल्टेज V2 का मतलब वोल्टेज अक्रॉस R1 चाहिए, V2 चाहिए। रजिस्टर का पावर का वेवफॉर्म जरूरत नहीं है मेरा, डायोड का पावर जरूरत नहीं है, लेकिन करंट का जरूरत है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस IR1 लिख रहा है ना, IR1। तो डायोड का करंट बाद में ले सकते हो, लेकिन ये तीन हमारा मैंडेटरी है, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड लोड करंट। हाँ, तो ये करके मैं सिमुलेट किया, तो यहाँ पे इसका वेवफॉर्म मिल गया। इसको तुम व्हाइट कर दो, बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक एक वेवफॉर्म को एनालिसिस करो। मैं V1 को बाद में करूंगा, पहले मैं सपोज V1 को पहले दिखता हूँ। तो V2 और R1 नीचे अनसिलेक्ट किया, ये V1 आ गया। V1 का वेवफॉर्म पेस्ट करोगे डायरेक्टली, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ V1। लिखोगे ये जो इसमें वोल्ट इनपुट वोल्टेज, इसको तुम ऐसे, अगर कोई बोलेगा सर मैं कर्सर से कुछ वैल्यू देके लिख सकता, हाँ ठीक है लिख सकते हो। तो तुम कर्सर से यहाँ पे एक वैल्यू देके लिख सकते हो। ये वाला जो है ऑप्शंस, ये थोड़ा साइड स्पेस में दे दो, फास्ट वाला पिक वैल्यू में ले जाओ कितना आ रहा है। हाँ, सो ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म। सिमिलरली आउटपुट का वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या होगा, इनपुट को अनसिलेक्ट कर दो और आउटपुट को सिलेक्ट करो, दिस इज आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक है, वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज। देन करंट थ्रू लोड, दिस इज करंट थ्रू लोड, बट दिस इज नॉट विजिबल, क्योंकि ये सब इसका रेशियो जो है यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, वोल्ट में है, और ये एम्पियर में होना चाहिए। अभी करंट तो कम आ रहा है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट कम आता है, यहाँ पे करंट मिली एम्पियर में आता है। तो मिली एम्पियर इज नॉट विजिबिलिटी, अपीयर्स एज ए स्ट्रेट लाइन। तो तुम इसको वर्टिकल जूम कर दोगे, वर्टिकल जूम देखो यहाँ पे दिस वन, ये हॉरिजॉन्टल जूमिंग, ये वर्टिकल जूमिंग। वर्टिकल जूमिंग में इसको थोड़ा ऐसे करो, करंट का वेवफॉर्म तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ये करंट का जो तुमको जैसे वेवफॉर्म तुमको प्रोमिनेंट लग रहा है उसी वेवफॉर्म लगेगा किसी भी साइकिल में। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दीज आर द वैल्यू, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू, ये वाई एक्सिस का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करंट वोल्टेज का वेवफॉर्म तुम एक एक करके पेस्ट करोगे तुम्हारा रिकॉर्ड में। समझ में आ रहा है? यस सर। सर वो जो आप टाइम लिए एनालिसिस का, वो इटरेट करके देखना पड़ेगा क्या, लाइक किसमें ठीक आ रहा है, किसमें मतलब कम आ रहा है कि ज्यादा? इतना ये मत करो, जरूरत नहीं है। मैटलैब में तो इससे तुमको बहुत कम माने एफर्ट देना पड़ेगा, उसमें एडिट करते हो तो 5 सेकंड वो सब दे देता है उतना। ये मल्टी सिम में तुमको थोड़ा झेलना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ तुम एक सॉफ्टवेयर के अंदर जाके थोड़ा सीखो। समझ में आ रहा है? मैटलैब में इतना सब नहीं करना पड़ेगा तुमको, नेक्स्ट क्लास में मैटलैब में दिखाऊंगा, उतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैटलैब में सिर्फ तुम देखोगे डायोड दे दिया और वहां पे 5 वोल्ट दे दिया या 230 वोल्ट दे दिया और एंटर सिमुलेट कर दिया, वो ऑटोमेटिक लेके वेवफॉर्म शो कर देगा। इसमें तुमको बहुत सारी चीज सीखना पड़ता है, मैटलैब में उतना भी नहीं है, वो यूजर सर फ्रेंडली है। मेरे पास मल्टी सिम ही नहीं है सर। इंस्टॉल कर दो, एक मेल आईडी मेरे में। लैपटॉप में वो ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा है। Multisim is an open access software. You can download it. The Sir, I student installed also it can twice, download but it. it didn't. Also, it is available in Institute Volt, Software Volt. Multisim is available, Institute Software Volt. You can download from Sir, there. I installed it once, but it didn't work, sir. देखो तुम्हारा लैपटॉप का जो रैम कितना है, वो तो एक काम करो, अदरवाइज उसको एक स्टूडेंट वर्जन है, मल्टीसिम स्टूडेंट वर्जन है, जिसमें सपोज हमारा इंस्टीट्यूट का तुम्हारा मल्टीसिम काम नहीं कर रहा है, तो मल्टीसिम स्टूडेंट वर्जन में एक मेल आईडी मांगेगा और वहां पे 30 डेज या 15 डेज का कुछ फ्री देगा। ठीक है, सो फ्री में तुम इंस्टॉल करके उसको, जैसे लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको 15-20 दिन 30 डेज के लिए तुम उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा जब फिर खत्म हो जाएगा
और कोई दूसरा एक मेल आईडी में उसको रजिस्टर करके फिर 30 डेज कर सकते हो। ऐसे तो तुम्हारा घर में तो 3-4 पर्सन होगा, सबका भी 4-5 मेल आईडी होगा और आराम से तुम 5 महीने तक वो मल्टी सिम कर सकते हो। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मल्टी सिम लास्ट सेमेस्टर जब ये हुआ स्टूडेंट्स ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए सर थे। नहीं समझा सर, क्या बोले सर वो? अरे एक मेल आईडी के लिए मल्टी सिम 30 दिन के लिए फ्री देता है लाइसेंस्ड वर्जन को। उसको बोलोगे इंस्टॉल, गूगल में जाके टाइप करो, सब मिल जाएगा। थोड़ा कोशिश करो ना। सब स्टूडेंट करते हैं, तुम्हारा इतना 42 स्टूडेंट है, 42 से कम 30 स्टूडेंट तो मल्टी सिम किए होंगे या कर पाओगे। दूसरे जो हो, तुम्हारा दोस्त से बोल के नहीं कर सकते? हाँ, अगर लैपटॉप तुम्हारा सपोर्ट नहीं करे तो दूसरा लैपटॉप में करो, किसी से लाके करो। किसी ऐसे तो नहीं है, अभी कोरोना तो इतना ज्यादा हैक्टिक नहीं हुआ है कि बाहर जाने से मर जाता है आदमी, ऐसा नहीं होता है, तुम अरेंज भी कर सकते हो। हाँ, तो ये सर जो है मर ये जाएंगे सब। सर अगर बाहर जाएंगे सर। हाँ, फिर भी तुम मास्क सैनिटाइजर पहन के भी तुम लाके कर सकते हो। हाँ, सर बाहर नहीं बोलता हूँ जाने मेरे के लिए। एरिया में कोई दोस्त नहीं रहते, मैं बहुत अकेला रहता हूँ इस एरिया में। क्या करेंगे सर? ट्राई करो, और कुछ तो हम लोग नहीं कर सकते ना। हम इससे क्या कर ज्यादा तो सकते कुछ हैं नहीं भाई? कर हम सकते। तुमको ट्राई तो हेलो करना सर, पड़ेगा। मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं बोलो? सर सर, क्या आप हम बोलिए। सर वो कॉपी पे कुछ करके वेब फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं? ऐसे ऐसे नहीं होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज कैसे हो करके पाएगा? करना पड़ेगा। हाँ, सर, मेरा लैपटॉप सिमुलेशन नहीं है तो सॉफ्टवेयर है कैसे ना करेंगे? ये, माने पेंटिंग Sir, सॉफ्टवेयर नहीं है। sir, यस। sir, can I give a suggestion, sir? Sir, because some of us who are lacking the softwares or resources can do screen share and work in a group in order to do the simulation and get the screenshots. So we have a week's time, so we will screen share. One of us who is having the software will screen share, and we will do it together only. And while submitting the record, we can use the same screenshots. But as we have put our efforts in it, so yeah, it's not a cheating. No, it is a good suggestion, but one thing, all records should not be same. Means your record of all the students should not be same. The means Obviously, values sir, should be different. who are one or two persons who are Yes. You can doing help it him. You can together? help him. You can Yes, help sir. him. Yes, Sir, we sir. can Sir, work in a group, sir. You make a group of 2-3 people will work in a group, sir. only 2-3 people having actually, this kind of issue. individual, that lab is designed for the individual effort. Okay, those having face problem, only those can ask. 2 or 3 request student their like that, friend. sir. Sir, Okay, sir, so sir. yes, yes. 2 or 3 student having this kind of problem. Yes. Sir, we can allow them to make a group. Like Only 2-3 people yes. you can be in that group. Okay. Those having that problem, but not all the 42 students. Okay, that is not acceptable. Okay, sir. Basically, most of you have the laptop and all of you appear for the placement. Okay, so definitely, anyhow you can manage it if you have such type of interest to pursue that work. So I think you can manage yourself. Okay, so in that case you can create a group those having the problem. Okay. Okay. Yes, sir. So students, this is one simulation I have explained. You have to do another simulation using RL load. Same thing you have to do. Same voltage, same means input voltage, output voltage waveform, and output current waveform. You make a inductor in series with resistor. हाँ? So यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे और तुम खुद करोगे सब, मैं प्रोसेस बोल दिया और जो काम है तुम्हारा काम है। तो यहाँ पे बेसिक में जाकर यहाँ पे इंडक्टर में बोल देता हूँ, इंडक्टर यहाँ पे है, तो अप्रोप्रिएट इंडक्टर एक ले जाओ जिसमें तुम्हारा वेवफॉर्म अच्छा आएगा। तो
उसमें तुम इंडक्टर को आर में सीरीज करके यहाँ पे आर एल लोड में सिमुलेट करोगे, सेम थिंग, सेम इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करेंट। तुम किसी भी प्रोसेस में कर सकते हो यूजिंग एनालिसिस और यूजिंग ऑसिलोस्कोप। ओके, अंडरस्टूड? Yes, So sir. using analysis और दोनों मेथड मत करो, मैं प्रोसेस बोल दिया, जिसको जो अच्छा लगता है डिपेंडिंग ऑन यू, तो उसमें तुम एनालिसिस में कर सकते हो, नहीं तो ऑसिलोस्कोप में कर सकते हो। तो ये तुम्हारा आर लोड देके किया, उसके बाद आर एल इन सीरीज, उसके बाद तुम्हारा आर एल ई, हाँ एक आर एल इन सीरीज विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड ये है, और एक विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, एक डायोड को तुम रिवर्स बायस में दोगे। This one you can put in reverse bias mode. ये हो गया तुम्हारा फ्रीव्हीलिंग डायोड। फ्रीव्हीलिंग डायोड देके तुम इसका आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ये मेजर करोगे, ठीक है? सो यूजिंग आर लोड, यूजिंग आर एल लोड, यूजिंग आर एल ई लोड, यूजिंग आर एल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड। लिख दो तो अच्छा रहेगा सर्किट करने में। आर लोड, आर एल लोड, आर एल ई लोड, आर एल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, आर एल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड। देन आर एल ई लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड। यहाँ पे और एक बैटरी लगा दोगे, यहाँ पे बैटरी है ऑप्शन में, पावर सोर्स यहाँ पे डीसी पावर जो है बैटरी है, तो आर एल ई लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, ये ई हो गया, ठीक? आर एल ई लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड। उसके बाद आर एल लोड हो गया, आर एल ई लोड फ्रीव्हीलिंग डायोड, ठीक? उतना डायोड के लिए उतना होगा, समझ में आया? हेलो? यस सर, यस सर। डायोड के लिए उतना होगा, आर लोड, देन आर एल लोड, देन आर एल ई लोड, और तीनों लोड में विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड का होगा, और जो आर एल एंड आर एल ई में विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड करोगे, ठीक है? सो उसमें तीन ठो वेवफॉर्म्स निकालना है, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। सर और क्या, और कुछ मॉडिफाई करेंगे क्या, या ठीक है? This is okay for it. First, you just check it for the diode, means uncontrolled rectifier. Then we can go for some controlled rectification. Means we can go for that. You can use the SCR, okay, or any other switch. सर एससीआर का नेक्स्ट क्लास करेंगे? Okay, हाँ. That is for the next class. Okay. हाँ, इतना तक करने दीजिए इनको अभी जो है। Okay. So you can go for it, no problem. And when another suggestions from to the students end. So when you are choosing any of the component, okay, means you know that there is a difference between analog electronics and the power electronics. Okay, if you are choosing one diode, okay, so you just see, you need to check it, is it analog device or power device? Like in case of diode, you can use 1N4007. Okay, that is also diode, but it is example of a signal diode. Okay, but here it is written na Mood MUR460Z. Okay, that Mood diode is your power diode. So when you are using any of the components for your power electronics converters or any of the circuits or the power electronics, except the control circuit, okay, power circuit, all the components should be the power
power group. Means if the diode you are using, that should be the power diode. If the MOSFET you are using, it should be the power MOSFET. If the BJT you are using, that should be the power BJT. Okay. So any of the devices that you are using the power circuit of the power electronics converter, okay, that should be the power devices. Okay. But in case of control circuit, it is not mandatorily use the power switches, okay, or the power device. In control circuit, you are also sometimes using diode, okay. So that should be the signal diode, okay. So all the components from the control circuit of your power electronics converter, that should be the analog devices, and all the components from the power circuit in your power electronics, any of the converter, that should be the group of power devices. Okay, I think all of you able to understand my points. Okay, I think you are able to understand the suggestions. Okay, so Namapushadda, is there anything? अटेंडेंस ले जाएंगे उनका? हाँ, you please take the attendance. You Namapushadda, okay, that's right. सर मुझे आप भेजे थे ये ग्रुप जो दूसरा ग्रुप का भेजे Okay, थे I ये, have just last class I just send it to you, the Excel file of the attendance. अच्छा ये ग्रुप का मैं देखता हूँ ग्रुप का है कि नहीं.